Good morning all. I welcome you once again for the lecture series of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Our today topic is arrest. Now, we already discussed in this lecture series the introduction part, then hierarchy of court, then one of the important functionary, that is public prosecutor. And this discussion make it clear some basic in respect of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. तो आज हम लोग इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अरेस्ट। तो जब हम अरेस्ट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 5 में अरेस्ट के प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो दिस टॉपिक ऑफ अरेस्ट इज इन कंटिन्यूएंस ऑफ द डिस्कशन ऑफ द प्रोविजन गिवन इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट इज Chapter 5. So the first thing which we need to know is Chapter 5 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita deals the provision of arrest. And once we see the Chapter 5, we will find Section 35 to 62 deals about the provision of arrest. Now, firstly we are going to discuss what amount to arrest means. In legal sense, how can we understand the arrest? Because in a legal arena, once this term arrest is being used, it is being used in a different sense in comparison to their ordinary meaning. जो ordinary और natural meaning है arrest का, उसको जब हम लोग legal sense में देखते हैं तो लीगल सेंस में अरेस्ट की मीनिंग डिफरेंट होती है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर गोइंग टू फर्स्टली डिस्कस इन अ लीगल सेंस और इन अ criminal proceeding, especially once this proceeding dealing with the criminal offense, what we understand by the term arrest. Now, once we see the ordinary and natural meaning of arrest, what we will understand? Arrest is derived from the French word, and that is arrêter. Arrest is derived from the French word, that is arrêter, and the meaning of arrêter is to stop, to stay or to restrain of the person. कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग अरेस्ट को के ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग को देखते हैं तो ये शब्द जो अरेस्ट है ये डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड एरेटर से, और एरेटर का मतलब है कि किसी को स्टॉप करना, किसी को स्टे करना या रेस्ट्रेन करना किसी भी पर्सन को, दैट इज अरेस्ट. नाउ यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं अरेस्ट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एरेटर, टू स्टॉप और स्टे, एंड सिग्निफाइज अ रेस्ट्रेन ऑफ पर्सन. मीन्स ऑर्डिनरली और नेचुरल मीनिंग में हम लोग अरेस्ट को क्या समझते हैं कि स्टॉप करना, स्टे करना और रेस्ट्रेन ऑफ द पर्सन. बट वंस वी use this natural and ordinary meaning of arrest in legal sense, whether we understand this word in a sense to stop or stay or restraining person only, that is not at all possible, because what we understand कि arrest जब किसी को किया जाता है तो उसकी पर्सनल लिबर्टी पूरी तरह से डिप्राइव हो जाती है और वो फिर उसको जो जेल में है उसको हम लोग रखते हैं. तो केवल स्टॉप और स्टे और रेस्ट्रेन पर्सन तो नहीं हुआ यहाँ पे, इससे भी ज़्यादा हुआ. तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए इसके लीगल सेंस को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और लीगल सेंस में हम लोग समझने के प्रयास में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं. नाउ द फर्स्ट लीगल सेंस we understand the meaning of arrest by reading section 43 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Once we read this section, what we will find, in order to make arrest, the police officer can either actually touch or confine the body of person unless the person himself submitted to the custody of the police either orally or by an action. Means what?
कि जब भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए जाती है तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को अपनी कस्टडी में वो पर्सन सबमिट करता है। अगर नहीं करता है तो उसकी बॉडी को पुलिस ऑफिसर टच और कन्फाइन भी कर सकता है। इट मीन्स दैट इज बीइंग क्लियर बाय रीडिंग सेक्शन 43 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कि सबमिशन to the custody of police means whenever there is an arrest there is a submission to the custody of police. Once we read the another section, that is section 58 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, what we will understand कि person arrested cannot be detained more than 24 hours. Detain in the custody, वहाँ भी आप 58 को ध्यान में रखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे डिटेन इन अ कस्टडी टू द पुलिस कि कस्टडी में। तो बाय रीडिंग दीज टू सेक्शन 43 एंड 58 वी कम टू नो कि वेन एवर देयर इज एन अरेस्ट इन अ लीगल सेंस तो देयर इज अ कस्टडी। तो in this context we are also like to understand one important case decision that is being decided by the Madras High Court, and the name of the case is Rawson B.B. Other versus Joint Commissioner to Government of Tamil Nadu. Here the court tries to find out the legal meaning of the arrest. When we use this word in a legal sense, in a procedure connected to the criminal offense, जब हम अरेस्ट शब्द को यूज़ करते हैं प्रोसीजर कनेक्टेड विद द क्रिमिनल ऑफेंस के सेंस में, तो हियर व्हाट डज इट मीन्स? एन अरेस्ट कंसिस्ट इन अ टेकिंग इनटू द कस्टडी ऑफ अनदर पर्सन। कि जब भी अरेस्ट होगा इट मीन्स व्हाट? अ पर्सन इज टेकिंग इनटू द कस्टडी, कि कस्टडी में उसको लिया जाएगा, एंड दैट कस्टडी इज बीइंग टेकन बाय the authority empowered by law. It means there must be a provision in respect of that arrest. It means कि the person who is taking into the custody means empowered by law. वो empowered होना चाहिए, means कहीं ना कहीं उसका provision होना चाहिए कि इस provision के तहत उसको custody में लिया जा रहा है। And the purpose of taking into the custody or detaining is to answer the criminal charge, means in allegation of criminal offense the person is in the custody and or prevention of commission of an offense, या उसको किसी ऑफेंस के को प्रिवेंट करने के पर्पस से उसको कस्टडी में लिया गया है। तो दिस वे ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग ऑफ अरेस्ट इज ओनली टू स्टॉप और रेस्ट्रेनिंग अ पर्सन, and it only make it clear कि when a personal liberty is being get deprived, जब किसी व्यक्ति का पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव हो जाता है तो उसको हम लोग अरेस्ट कहते हैं। लेकिन जब हम लोग लीगल सेंस में अरेस्ट को देखते हैं विच इज कनेक्टेड टू एनी क्रिमिनल ऑफेंस, तो इट मीन्स व्हाट? कि लीगल सेंस में पर्सन इज सेड टू बी अरेस्टेड व्हेन पर्सन इज टेकिंग इनटू कस्टडी एंड दैट टेकिंग इनटू कस्टडी बाय द ऑथोरिटी ऑफ लॉ, and this authority of law is taking into custody for the purpose of alleviation of criminal offense or to the prevention of offense, and this way we understand the meaning of arrest. तो that is very important। कभी भी कोई ये क्वेश्चन पूछे या पूछे कि नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग अरेस्ट का बहुत सिंपल है, बट लीगल सेंस में अगर किसी ऑफेंस के सेंस में हम लोग अरेस्ट वर्ड को बोलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा उससे डिफरेंट मीनिंग हम लोग को मिलता है, एंड दैट डिफरेंट मीनिंग मस्ट बी अंडरस्टूड फॉर अ रीज़न ऑफ ऑल पर्पसेस। नाउ once we understand the meaning of arrest, the second important point which need to understand is the purpose of arrest. Why there is a provision of arrest under Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Now the first purpose of arrest is an important tool so far as the investigation is concerned, because we understand every offense need to be investigated, inquired and tried. So one of the important tool of investigation, the first thing we need to be remember, and the arrest is basically done firstly in order to ensure the presence of person
in inquiry or trial by the court. Now the second important purpose is to prevent the commission of an offense, means arrest is also being used as a preventive measure. Now if anybody create obstruction in execution of duty of any police officer, then there is also a provision of arrest. Now if anybody is escaped from the custody, then there is a provision of arrest. So this way what we will understand that the provision or arrest is being effectuated for certain purpose. Now once we understand that this is the legal meaning of arrest and the purpose of arrest is this, then the second important question is who will take the decision of this arrest. Before this, one thing is also important to understand on the basis of this discussion, that there is a difference between custody, arrest and detention. These are the three important things: detention, custody and arrest. तो arrest what we will understand, अरेस्ट मीन्स हम लोग समझे कि कस्टडी में लेना, और कस्टडी में लेने का एम्पावरमेंट जो है लॉ के द्वारा दिया गया है, तभी किसी को कस्टडी में लिया जा रहा है, और पर्पस है कि एलिगेशन ऑफ ऑफेंसेस लगे हुए हैं उसी के लिए उसको अरेस्ट में किया जा रहा है, या कोई प्रिवेंटिव रीजन है जिसके कारण उसको अरेस्ट किया जा रहा है। बट कस्टडी में लेना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे हम लोग यह कंक्लूड कर सकते हैं कि in arrest, every arrest there is a custody, but every custody does not amounted to arrest. कि हर कस्टडी, हर अरेस्ट में कस्टडी तो होता है, लेकिन हर कस्टडी में अरेस्ट नहीं होता है। और डिटेन करना, किसी के पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करना, वो कोई एक जनरल पर्सन भी कर सकता है, लेकिन जब डिटेंशन और किसी के पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ किया जा रहा है, तब हम लोग इसको अरेस्ट बोलेंगे, अदरवाइज इट इज़ सिंपली डिटेंशन। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगेन यहाँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस भी था, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार का। हियर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज बिफोर अ सुप्रीम कोर्ट इज, वंस अ पर्सन इज सरेंडर बिफोर अ कोर्ट, एक व्यक्ति है जिसने अपने आप को कोर्ट में सरेंडर किया, तो और वहीं से सरेंडर के बाद उसको बेल मिल गया, तो वेदर दैट इज अमाउंटेड टू बी द कस्टडी और नॉट, क्या इसको कस्टडी कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आया, स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक वैकेंसी निकाला अपॉइंटमेंट के लिए, और वो वैकेंसी था कांस्टेबल ड्राइवर का, एंड दिस दिनेश कुमार इज़ एन एप्लीकेंट ऑफ दैट वैकेंसी। और ये दिनेश कुमार जो था उस वैकेंसी में एक एप्लीकेंट था। उस वैकेंसी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए उसके फॉर्म में, और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया दिनेश कुमार से कि वेदर यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, आंसर यस और नो। दिस दिनेश कुमार आंसर नो। नाउ वेदर यू एवर बीन अरेस्टेड, so this Dinesh Kumar answer no, but later on it is being inquired by the authority कि this Dinesh Kumar is being arrested and surrendered before a court, and then by that surrender he will take the bail. So here the important question before a Supreme Court is whether surrenders before a court amount to arrest or not. Here court make it clear कि surrendering before a court amounts to a judicial custody, and once the person is judicial custody means it is in custody, then this is also amount to be an arrest. But since Dinesh Kumar is a simple citizen, they cannot understand the technicality of law, so court gives the relief of Dinesh Kumar कि he is not being arrested. But here the court make it clear कि surrendering before a court or is amounted to be a judicial custody, and once it is in custody it is also amounted to be an arrest, so that we will understand that whenever there is an arrest there is a custody. Now we understand the meaning of arrest, purpose of arrest, and difference between custody, arrest and detention. Now coming to who will decide that the circumstances of arrest is present. That is a very basic question. Who will decide this? Now
in this point, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita make it clear regarding the decision of arrest, and on that basis the arrest can be defined or described under two types. इसी को आधार मानते हुए ये जो बेसिक चीज़ है कि अरेस्ट के सर्कमस्टांसेस मौजूद हैं या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेगा, इसी को आधार मानते हुए अरेस्ट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने दो कैटेगरी में डिस्क्राइब किया है. नाउ द फर्स्ट कैटेगरी इज एन अरेस्ट मेड इन व्यू ऑफ वारंट इशूड बाय अ मैजिस्ट्रेट, एंड दिस इज कॉल्ड अरेस्ट विथ वारंट. Now the second category is an arrest made without warrant. Now it is a very basic to understand, or it is very important to understand कि why Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita describe the arrest in two category, arrest with warrant and arrest without warrant. कि क्यों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने इसको दो कैटेगरी में रखा. तो इसका रीजन सिंपल है, डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट. Here whether arrest can be made or not, the decision is being taken by the magistrate, so that here it is called arrest with warrant. And whether arrest is being made or not, whether circumstances of arrest is present or not, here the decision is being taken by the investigating agency or a police officer. So here it is called arrest without warrant. So that is very important to understand. Basically we cannot understand why the arrest is being categorized into two category, arrest with warrant and arrest without warrant. I hope so this is being clear why it is being categorized under two head. Now once we see the mechanism of arrest with warrant, what we will understand by reading the various provision of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, कि normally a court issue a warrant once court take the cognizance, and once we see the provision of court, when court is empowered to take cognizance, court is empowered to take cognizance either by police report or a complaint or any information received by the court. So once police take cognizance on the basis of police report, normally here there is no issue to warrant, because normally police report is being submitted once the investigation is completed. So here arrest with warrant provision is basically applied when court taking cognizance on the basis of complaint or court taking cognizance otherwise than complaint, means information received by the magistrate in another source. So this provision arrest with warrant is basically applied in those circumstances. Again, the another circumstances where arrest with warrant is being applied in a case of non-cognizable offense. While reading the definition of non-cognizable offense, हम लोगों ने समझा कि यहाँ पे arrest जो होगा always by the order of magistrate or warrant issued by a magistrate होगा. And the provision in respect of arrest with warrant is being given in section 72 to 83. And that we will discuss once we discuss the procedure to compel the appearance of person, और उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अरेस्ट विथ वारंट के प्रोविज़न को सेक्शन 72 से 83, जब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोसीजर टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ person. Now the second category of arrest is an arrest made without such warrant, means arrest without warrant. And this provision arrest without warrant is we will discuss with the help of section 35, section 39, and then we will discuss with the help of section 41 and section 40. इन प्रोविजंस को जो कि अरेस्ट विदाउट वारंट के प्रोविज़न हैं, तो यू विल फाइंड दीज प्रोविज़न इन योर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बेयर एक्ट सेक्शन 35, आई एम रिपीटिंग अगेन 39, that is arrest by police, means when a police is authorized to arrest without warrant, that is given in section 35 and 39. And sometimes private person is also authorized to arrest without warrant, and that is section 40. And then magistrate is also authorized to arrest without warrant, and that is section 41. It means
there are three important persons who are authorized to arrest without warrant as per the provision of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तीन important लोग हैं जो कि अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, वो है पुलिस ऑफिसर, then magistrate, then private person. Now firstly we are going to discuss when police is authorized to arrest without warrant, and that we will discuss with reference of section 35 and 39, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 35 और 39 के माध्यम से। सेक्शन 35 and 39, that is I am repeating again and again कि which section is important which talks about police officer arrest without warrant. So that is section 35 and section 39. Please see carefully section 35. What we will find इस सेक्शन 35 जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एनी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट और विदाउट द वारंट टू एनी पर्सन। कोई भी पुलिस ऑफिसर, हियर द टर्म इज बीइंग रिटन एनी पुलिस ऑफिसर, नो स्पेसिफिक ऑफिसर इज बीइंग मेंशन्ड इन सेक्शन 35। कोई स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर के बारे में नहीं बताया गया सेक्शन 35 में। सिंपली सेक्शन 35 में कह रहा है कि एनी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट और विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू एनी पर्सन। नाउ वंस वी सी द केयरफुली सेक्शन 35, यू विल फाइंड देयर आर 10 circumstances given in section 35. Section 35 subsection 1 सब क्लॉज A to J, A to J से आप सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं, आप अपने बेयर एक्ट में देखेंगे केयरफुली A से J तक का सर्कमस्टांसेस लिखा हुआ। नाउ कम टू वन बाय वन वी विल डिस्कस दीज सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस नंबर 1, व्हेन पर्सन कमिट एन ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। व्हेन एनी पर्सन कमिट एन ऑफेंस दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस in presence of police officer, here police can arrest without warrant. Now secondly, when police receives complaint or credible information or reasonable suspicion exists regarding the commission of an offense, जब पुलिस को कोई credible information मिला या reasonable complaint मिला या फिर कोई रीजनेबल सस्पिशन पुलिस ऑफिसर को एग्जिस्ट कर रहा है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस का, और वो ऑफेंस जो है दैट इज पनिशेबल विच एक्सटेंड टू 7 ईयर, सो विच इज लेस देन 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और वो ऑफेंस 7 साल से कम की सज़ा का है या 7 साल के तक की सज़ा का है। ऐसा इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में मिला पुलिस को। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि पनिशेबल 7 साल से कम है और 7 साल तक है, उसका इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलता है, तो पुलिस क्या यहाँ पे ऑटोमेटिकली अरेस्ट करेगी? तो फिर यहाँ पे बहुत केयरफुली वहाँ पे प्रोविज़न को देखना है कि अगर इस तरह के कॉग्निजेबल ऑफेंस जो 7 साल से कम और 7 साल तक के रिस्पेक्ट में पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन या कंप्लेन या तो सस्पिशन एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे पुलिस उसको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी। पुलिस नीड टू बी सेटिस्फाइड ऑन सर्टेन ग्राउंड। पुलिस को कुछ ग्राउंड्स में सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, उनको कुछ चीज़ों का विचारण करना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये सारे ग्राउंड्स मौजूद हैं कि नहीं, और आप केयरफुली अपने बेयर एक्ट में देखिए कि वो ग्राउंड्स वहाँ पे उसके बाद लिखा हुआ है कि वेयर the police has reason to believe that person has committed a cognizable offense। पुलिस को reason to believe है कि उसने वो कमीशन cognizable offense का किया है, जिसके संदर्भ में हमको कंप्लेंट मिला, जिसके संदर्भ में हमको इंफॉर्मेशन मिला है या जिसके संदर्भ में हमारा रीजनेबल सस्पिशन है, उसमें पुलिस को रीज़न टू बिलीव है। यहाँ द वर्ड रीज़न टू बिलीव इज़ वेरी मीनिंग। रीज़न टू बिलीव मीन्स ही हैज़ अ बिलीव इन गुड फेथ, उसको गुड फेथ में ये बिलीव है कि इसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया। अगेन पुलिस नीड टू ऑल्सो सेटिस्फाई दैट द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ फर्दर ऑफेंस। पुलिस को ये सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे अरेस्ट जो है वो ज़रूरी है क्योंकि इसको ये फिर से वो ऑफेंस कमिट कर सकता है। नाउ अरेस्ट इज़ नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ये भी सोच रही है कि नहीं यहाँ अरेस्ट करना जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है। पुलिस इज़ being satisfied that person can going to temper the evidences
or that person is offer any inducement, threat or promise to those person who are acquainted with the fact and circumstances of case, या फिर पुलिस ये सोच रही है कि इस पर्सन के प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए अरेस्ट जो है नेसेसरी है। तो इन सारी ग्राउंड्स को पुलिस ध्यान में रखेगी इन अ केस once the police receives information in respect of commission of cognizable offense which is punishable with less than 7 year और extend to 7 year। तो यहाँ पे cognizable offense को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक cognizable offense punishable less than 7 year और which extend to 7 ईयर, ये ध्यान रखने की बात है। तो लेस देन 7 ईयर में पुलिस इन सारे ग्राउंड्स को सेटिस्फाइड होगी, देन दे विल टेक द डिसीजन कि हमको अरेस्ट करना है या नहीं करना है। और वट एवर ही इज टेक टू डिसीजन, स्टैट्यूटरीली वहाँ ध्यान से देखना है कि ही नीड टू रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग, कि उसको वहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीज़न इन राइटिंग कि हाँ ये सारे ग्राउंड मौजूद थे इसलिए हमने इनको अरेस्ट किया, या ये सारे ग्राउंड नहीं मौजूद थे इसलिए हमने इनका अरेस्ट नहीं किया। इसके रिस्पेक्ट में दोनों ही समय में अगर वो अरेस्ट करना चाहते हैं तो भी रीज़न लिखना पड़ेगा, और नहीं करना चाहते हैं तो भी उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीज़न को राइटिंग। नाउ इफ़ यू विल सी द फर्दर ग्राउंड्स, ग्राउंड नंबर 3 दैट इज सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी आप देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि द पुलिस रिसीव्स एन इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ मोर देन 7 ईयर। हियर पुलिस नीड नॉट टू बी थिंक अबाउट दोज ग्राउंड्स, उन सारे ग्राउंड्स को उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है, दे कैन अरेस्ट द पर्सन। नाउ ग्राउंड नंबर 4 जब हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इफ़ अ पर्सन इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर देन द पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। If a person in his possession any stolen property is being found, then he can be arrested without warrant, तो उनको without warrant वो arrest हो सकते हैं। Then if he is a deserter of armed force, then he can be arrested without warrant. If he is a released convict or he breached the condition of his release, he can also be arrested without warrant. Again, if the person commits an offense outside India that amounted to be an offense in India, he can also arrest without warrant if there is applicability of extradition treaty. Then these are the grounds where the police can be arrested without warrant. I hope so. You need to read carefully section 35 subsection 1 clause A to J. Now once we read it, subsection 2 of section 35 is also very important. That makes clear कि non-cognizable offense police can arrest with warrant. 35 subsection 2 हम लोग जब पढ़ेंगे वहाँ ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि ये non-cognizable offense में पुलिस जो है वो अरेस्ट जब भी करेगी तो वो वारंट के साथ करेगी। Now 35 subsection 3 to subsection 6, this is very important to discuss because it deals the procedure to issue notice in all cases where arrest is not compulsory under section 35। यहाँ पे एक टेक्निकल बात ये समझना है कि 35 सबसेक्शन 3 उन सारे सिचुएशंस के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे अरेस्ट कंपलसरी नहीं है, विदाउट वारंट कंपलसरी नहीं है, वहाँ उन सारे सेक्शन सिचुएशंस के बारे में बात करा। तो अगर हम लोग फिर से रिमाइंड करें तो 35 में कौन सा सिचुएशन है जहाँ अरेस्ट कंपलसरी नहीं है? कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज पनिशेबल लेस देन 7 ईयर और विच एक्सटेंड टू 7 ईयर, इस सिचुएशन में अरेस्ट कंपलसरी नहीं है। तो 35 में कह रहा है कि जहाँ भी अरेस्ट कंपलसरी नहीं है तो वहाँ पे पुलिस 35 सबसेक्शन 3 हम लोग को ध्यान से देखना है, वहाँ पुलिस इज डायरेक्टेड टू इशू नोटिस टू द पर्सन फॉर द अपीयरेंस। वहाँ पे तो जब अरेस्ट नेसेसरी नहीं है, अगर वो ग्राउंड्स नहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो वहाँ पे पुलिस को क्या करना है? इशू नोटिस करना है। किसको? जिसको अरेस्ट करना है उसको करना है कि आप अपीयर होइए। और जिस किसी को भी ये नोटिस किया जाएगा तो 35 सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है कि उसकी ये ड्यूटी होगी वो अपीयर हो। और 35 सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है? ये बता रहा है कि जब भी ये नोटिस होगा तो उसको अगर वो कंप्लाई कर देगा
जिस पर्सन को, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और 35 क्लॉज 6 क्या बोल रहा है कि अगर वो कंप्लाई नहीं करता है नोटिस को, तब उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो इशू नोटिस in a case where arrest is not compulsory under section 35 of section 1, that is very important to understand in present scenario। ये आज वो के सिनेरियो में समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस बहुत देखा जा रहा है। और इसी नॉन कंप्लायंस को जो है कि कभी कभी ये पूछा जाता है इस सेंस में कि अच्छा, अरेस्ट क्या एक मैकेनिकल चीज़ है कि पुलिस को कभी भी कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिले या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिले तो मैकेनिकल बात है कि अरेस्ट कर ही लेना है पुलिस को। तो इसका नॉन कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ ऑफेंसेस को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है कि नहीं, जब ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस 7 ईयर से कम का पनिशमेंट का है या 7 ईयर तक के पनिशमेंट का है, तो वहाँ जो है पुलिस को पहले क्या करना है, नोटिस इशू करना है। और नोटिस का अगर कंप्लायंस हुआ है तो फिर अरेस्ट नहीं करना है नॉर्मली, और उसके बाद भी वो अरेस्ट करना चाहते हैं तो उसको उसका रीज़न लिखना पड़ेगा कि आपने क्यों निर्णय लिया कि इस अवस्था में उसको अरेस्ट करना है। एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 2 इम्पॉर्टेंट केस डिसीजंस मैं डिस्कस करना चाहूँगा रिगार्डिंग द इशू ऑफ नोटिस इन दोज केसेस वेयर अरेस्ट इज नॉट कंपल्सरी, एंड दीज जजमेंट आर अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। That is a very leading judgment on that point, and here court make it clear police officer must not automatically arrest, magistrate must also check if these provisions were complied with। कि नहीं, अरेस्ट जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह नहीं फॉलो करना है, और जब भी रिमांड में मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है अरेस्ट में, तो अरेस्ट मैजिस्ट्रेट को भी देखना है कि क्या एक लेस देन 7 ईयर का ऑफेंस था और इसमें नोटिस किया गया था कि नहीं किया गया था, और अगर नोटिस नहीं किया गया था तो उसके क्या रीज़न हैं। तो दिस आर नीड टू बी ऑल्सो वेरीफाइड बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ द कंसर्न। और हियर द कंटेम्प्ट अगर इन प्रोविजंस का होता है तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की भी बात करी है कि पुलिस को पे भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकता है और मैजिस्ट्रेट के पर हो। तो दीज इशू नोटिस प्रोविजन नाउ इट इज़ वेरी important in those cases where arrest is not compulsory। In another way you will understand कि where the cognizable offence is punishable with less than 7 year or which extend to 7 year। Another important case, although that case is in respect of Bell jurisprudence, लेकिन सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI के केस में भी कोर्ट ने फिर से reiterate किया कि for offence punishable up to 7 year police should generally issue a notice। Earlier under section 41A of CRPC पहले था, now it is section 39 subsection 3। तो this way this is also very important to understand कि अगर इसके रिस्पेक्ट में नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो that is also amounted to the violation of personal liberty under article 21 कि अगर नोटिस इशू किए बिना अगर आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं विदाउट रिकॉर्ड किए हुए रीज़न, तो उसको हम लोग पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन मानते हैं। So this way we will understand section 35 when a police is empowered to arrest without warrant। Now the another section is section 39, and that section talks about when any person committed non-cognizable offense in presence of police officer and police try to find out their identity and that person then fail to disclose their identity, true name नहीं बता पा रहे या करेक्ट एड्रेस अपना नहीं बता पा रहे हैं, या बता रहे हैं और पुलिस को ये बिलीव नहीं हो रहा है कि इनका ट्रू नेम और करेक्ट एड्रेस यही है, तो पुलिस आर ऑथराइज टू अरेस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट वारंट। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मली जब हम लोग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा पढ़ते हैं या डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जब भी अरेस्ट करेगी तो विथ वारंट ही करेगी, बिना वारंट के वो अरेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन सेक्शन 39 इज़ एन एक्सेप्शन फॉर दिस, ये इसका एक एक्सेप्शन है और इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं 35 के सबसेक्शन 2 में। वहाँ लिखा हुआ है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नॉर्मली पुलिस वारंट के साथ गिरफ्तार करी एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39। तो 39 बेसिकली empower a police to arrest in non-cognizable offense in order to find out the true name and correct address। So this way we understand when a police is empowered to arrest without warrant। Now magistrate is also empowered to arrest
विदाउट वारंट एंड दैट इज सेक्शन 41। तो मैजिस्ट्रेट भी एम्पावर हैं कि बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। व्हेन एनी पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, कि मैजिस्ट्रेट के समक्ष में कोई कर रहे हैं ऑफेंस, आइदर दैट मैजिस्ट्रेट इज ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट टर्म है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं विद इन हिज जुरिस्डिक्शन, और उसके जुरिस्डिक्शन में वो आना चाहिए। तो आइदर ही हिमसेल्फ अरेस्ट और डायरेक्ट टू अरेस्ट, और जहाँ जहाँ मैजिस्ट्रेट अपने जुरिस्डिक्शन में एम्पावर्ड है अरेस्ट को करने के लिए, तो उसके संदर्भ पे भी मैजिस्ट्रेट विदाउट वारंट वो सेक्शन 41 में अरेस्ट का डायरेक्शन दे सकते हैं। एंड दिस इज द प्रोविजन, द मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नाउ that is a very important question for a general person also, or a law student, whether a private person is also empowered to arrest without warrant. तो यह section 40, if you see the provision carefully you will find, अब जब आप उस provision को देखेंगे तो आप क्या पा रहे हैं कि when any person commits a cognizable offense, non-bailable offense, or he is a proclaimed offender, here the private person is also authorized to arrest. तो उसको अरेस्ट वहाँ पे बोल दिया गया है, लेकिन वो टेक्निकली अरेस्ट तब होगा जब वो पर्सन, जो प्राइवेट पर्सन उसको अपनी कस्टडी में लिया है, तो उसको हैंडेड ओवर करना पड़ेगा किसी पुलिस ऑफिसर को या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके। देन द पुलिस विल डिसाइड वेदर अरेस्ट कैन बी मेड अंडर सेक्शन 35 और सेक्शन 39, कि 35 में उसका अरेस्ट किया जाए या सेक्शन 39 में अरेस्ट किया जाए। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट बात है कि एक आवर पहले स्पेसिफाई नहीं था, यहाँ पे आवर भी स्पेसिफाई कर दिया है कि 6 आवर के अंदर दैट प्राइवेट पर्सन को, उस व्यक्ति को जिसको उन्होंने अपने कस्टडी में लिया है, तो उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देना है। एंड दिस वे वी अंडरस्टैंड प्राइवेट पर्सन इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नाउ वी अंडरस्टैंड अरेस्ट इज आइदर विथ वारंट और विदाउट वारंट। Arrest without warrant can be made either by the police officer, and for this section 35 and 39 is important. Arrest by magistrate, magistrate is also authorized under section 41. Then the private person, that is section 40, and this is very important to understand. Now once we understand the mechanism of arrest, how the arrest can be effectuated, arrest with warrant or arrest without warrant, it is also important to arrest कि once the arrest is being made, what procedure is being followed during arrest, कि arrest करने के दौरान जो है वो कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाना ज़रूरी है, और उसको भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने अपने अरेस्ट के चैप्टर में दिया है। नाउ देयर आर ऑल्सो सर्टेन प्रोविजन विच नीड टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट। तो हियर वी आर गोइंग टू फर्स्टली डिस्कस what procedure need to be followed once पुलिस डिसाइडेड टू अरेस्ट। पुलिस ने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे अरेस्ट करना है, तो क्या प्रोसीजर पुलिस को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस। द फर्स्ट थिंग द पुलिस विल कंसिडर इज सेक्शन 36। जो सबसे पहली बात पुलिस को सोचना है वो सेक्शन 36 को सोचना है कि एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट, कि जब भी पुलिस को अरेस्ट के लिए जाना है, दे मस्ट बियर एन एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम। वो विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम का अपना नेम प्लेट रखे, क्योंकि दैट इज सेक्शन 36 दैट इज मेक क्लियर कि व्हेन पुलिस ऑफिसर डिसाइडेड टू मेक एन अरेस्ट दे मस्ट बियर एक्यूरेट क्लियर एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। Now the second important thing, preparation of memorandum of arrest. Preparation जो है वो अपने memorandum of arrest का करना है। What is this memorandum of arrest? Memorandum of arrest is a document prepared by a police officer who is making an arrest। एक document जो बनाना है पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के दौरान, that is called memorandum of arrest, and that is very important in order to save the person unauthorized arrest or illegal arrest. That document is very important to prepare, so that law here mandate under section 36 to preparation of memorandum of arrest, and that memorandum of arrest content क्या होगा उसका,
attested by at least one witness, preferably the family members, or if no family member is available, in that case respectable resident of that area, and that is countersigned by the person arrested, and that is also being signed by the police officer arrested. Memorandum of arrest basically mention the fact of arrest, then time of the arrest, then place of the arrest, then it also attested by one witness, then countersigned by the arrested person, and then signed by the police officer who is arresting. और साथ में उसको अरेस्ट करने के दौरान ये भी इन्फॉर्म करना है कि आपको राइट है कि आप किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर फैमिली मेम्बर के प्रेजेंस में नहीं अरेस्ट किया गया है तो दे सकते हैं आप उसको इन्फॉर्मेशन, किसी भी रिलेटिव या अपने फ्रेंड्स को। तो द फर्स्ट थिंग विच वी नीड पुलिस ऑफिसर और एनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी व्हेन गो टू द अरेस्ट मस्ट बी रिमेंबर कि उनको ये कंप्लायंस करना ही करना है। पहला कंप्लायंस कि वो विजिबल, क्लियर और एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन नेम का प्लेट पहने। दूसरा जो है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट ज़रूर बनाए, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे उसको अटेस्टेड कराना ज़रूरी है एक विटनेस का, जो अरेस्ट का विटनेस, जिसको अरेस्टिंग विटनेस हम लोग बोलते हैं, और काउंटर साइंड एक्यू अरेस्टेड पर्सन का लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझे कि ये तो कंप्लायंस कर रही है। अब ये कंप्लायंस करने के बाद हम लोग को सेक्शन 43 देखना है। सेक्शन 43 मेक इट क्लियर हाउ द अरेस्ट कैन बी मेड। जब हम सेक्शन 43 के मार्जिनल नोट को देखते हैं तो ये देखते हैं कि अरेस्ट कैसे किया जाता है। तो जब भी हम पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए गई है, अगर पर्सन जो है उसको कस्टडी में बाय ओरल और बाय एक्शन के थ्रू सबमिट कर दे रहा है तो ठीक, अदरवाइज पुलिस ऑफिसर उसको एक्चुअल टच और कन्फाइन भी कर सकता है। तो वेदर पुलिस ऑफिसर कैन टच और कन्फाइन द पर्सन need to be arrested, so yes, it can be if he is not submitting to the custody to the police. Now while making an arrest, police can also have this kind of powers. Police can use the force. Let it suppose if the person is avoiding the arrest and they resisting the arrest, उसको resist कर रहा है, तो whether police is empowered to use the force? Yes, police is empowered to use the force. If you read carefully, section 43 make it clear police can use, but that force cannot be excessive. excessive restraint नहीं हो सकता है, लेकिन force का इस्तेमाल हो सकता है। Again, by using that force, whether police is empowered to cause the death of person also, ये भी बड़ा ध्यान से देखने की बात है। क्या उस फोर्स का इस्तेमाल करके क्या पुलिस जो है वो डेथ भी कॉज कर सकती है? तो नॉर्मली आंसर है कि नहीं कर सकती है डेथ कॉज, उतना फोर्स का इस्तेमाल नहीं हो। लेकिन इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, देन पुलिस कैन ऑल्सो कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। तो आप यहाँ पे 43 का सबसेक्शन 4 पढ़ेंगे केयरफुली तो यू विल फाइंड इट। नाउ द अनदर, वेदर द पुलिस शुड नॉट हैंडकफ एक्यूज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो इसके संदर्भ में एक बहुत पहले एक डिसीजन था सिटीजन डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इस चीज़ को केयरफुली लिया और कहा कि नहीं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप हैंडकफ नहीं कीजिए। लेकिन यहाँ एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हैंडकफ के रिस्पेक्ट में क्लैरिटी था दे दिया गया, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में नहीं था, कि कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, पुलिस विल डिसाइड वेदर हैंडकफ इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ मेकिंग अरेस्ट और प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज बिफोर द कोर्ट। ये ग्रेविटी के आधार पे देखेगी। अगर वो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है या हीनियस क्राइम है या टेररिस्ट एक्ट में है या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में है तो उसको हैंडकफ किया जा सकता है। यहाँ दे आर परमिटेड अंडर सेक्शन 43। नाउ पुलिस पावर टू सर्च अ प्लेस। लेट इट सपोज पुलिस गो टू अरेस्ट एंड द पर्सन जिसको अरेस्ट करने के लिए गया है ही इंटर इनटू अ प्लेस। Whether police is empowered to search that place where he entered, that person need to be arrested is being entered. So yes, police is empowered to search that place, and that is section 44. Section 44 जब आप केयरफुली देखेंगे तो you will find कि हाँ, पुलिस जो है वो उस प्लेस को सर्च कर सकती है जहाँ पर्सन जिसको अरेस्ट करना है वो अंदर चला गया, और वहाँ पे उस प्रीमाइसेस के ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट इज़ अ responsibility of occupier की give the all reasonable aid to the police in order to search that place। और अगर वो नहीं करते हैं, अगर reasonable aid नहीं देते हैं तो पुलिस जो है वो फोर्स का भी इस्तेमाल
कर सकती है, दैट इज सेक्शन 44। नाउ पुलिस पावर टू परस्यू द ऑफेंडर एनी प्लेस इन इंडिया। अरेस्ट करने के लिए पुलिस जो है वो उसको परस्यू कर सकती है किसी भी पर्सन को जिसके लिए वो ऑथराइज है अरेस्ट करने के लिए कहीं पे प्लेस ऑफ इंडिया में, दैट इज सेक्शन 45। नाउ द पुलिस पावर टू ऑब्टेन असिस्टेंस। पुलिस को किसी भी सिटीजन से वो असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकती है अगर कोई व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो, और वहाँ पे अगर असिस्टेंस मांगा जा रहा है पुलिस के द्वारा तो वो उसकी एक लीगल ड्यूटी है कि वो उसको असिस्ट करे। नाउ पावर टू रिक्वायर सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू अरेस्ट। तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न सेक्शन 55 है कि अगर जो ऑफिसर इंचार्ज है उसने अगर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया कि आपको अरेस्ट करना है तो वहाँ पे सबऑर्डिनेट ऑफिसर इज अंडर लीगल ड्यूटी अंडर सेक्शन 55 कि वो उसको अरेस्ट करेगा। तो दिस वे वी अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द प्रोसीजर नीड टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ मेकिंग अरेस्ट, एंड इन दिस कंटेक्स्ट सेक्शन 36 is important, then section 43 is important, then section 44 is important, 45 is important, then section 33 and then section 55 और 61 भी इसके साथ देख लेंगे कि री अरेस्ट कर सकते हैं जब वो अगर कोई कस्टडी से एस्केप करे। तो ये प्रोसीजर एक बार ज़रूर देख लेना है बिकॉज दीज आर द प्रोसीजर फॉलोड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। वंस अरेस्ट इज बीइंग कंप्लीटेड, जब अरेस्ट कंप्लीट हो गया तो कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करना है, जैसे सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन सेक्शन 49 की। जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसका पूरा सर्च किया जाता है और एक्सेप्ट देयर नेसेसरी वियरिंग अपैरल को छोड़ करके जो भी आर्टिकल उससे फाउंड होते हैं तो उसका एक सीजर लिस्ट बनाया जाता है और उसको रख दिया जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, तो उसमें सर्च करना ज़रूरी है। फिर अगेन सीजर ऑफ ऑफेंसिव वेपन, अगर उसके अरेस्ट करने के बाद कोई उससे वेपन्स मिल रहे हैं तो उसको सीज कर लेना है और कॉम्पिटेंट कोर्ट को उसको सबमिट कर देना है कि ये वेपन्स जो है वो अरेस्टेड पर्सन से मिले थे, दैट इज सेक्शन 50। नाउ द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, अरेस्ट करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन का भी प्रोविज़न है। तो दैट इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, बट हियर वी विल अंडरस्टैंड द प्रोसीजर आफ्टर अरेस्ट प्रोसीजर में इसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग जब ध्यान से देखेंगे कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन के जो प्रोविज़न है वो 3 प्रोविज़न दिए गए। सेक्शन 51 में भी मेडिकल एग्जामिनेशन अरेस्टेड पर्सन का हो रहा है, 52 में भी हो रहा है और 53 में हो रहा है। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज प्रोविजन 51, 52 एंड 53, इन तीनों में क्या अंतर? तो जब हम लोग ध्यान से 51 को देखते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर हो रहा है। किसके रिक्वेस्ट पे हो रहा है? पुलिस ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया है वो रिक्वेस्ट कर रही है कि नहीं अक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। वाई ही इज़ रिक्वेस्टिंग, क्यों रिक्वेस्ट कर रही है? बिकॉज ही फील्स, उसको ऐसा लग रहा है, उसको फील हो रहा है कि इसके एग्जामिनेशन के द्वारा हमको कुछ एविडेंसेस मिल सकते हैं, उसको एविडेंसेस कुछ मिल सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन करने की। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि 51 में जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो मेडिकल प्रैक्टिशनर से करने की बात हो रही है, तो वहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एग्जामिनेशन हो सकता है। 52 जो है वो एक्यूज्ड ऑफ रेप के रिस्पेक्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन की बात हो रहा है, नॉर्मल प्रोविजन नहीं कि वंस पर्सन इज अरेस्टेड एंड ही इज एन एक्यूज्ड ऑफ रेप देन देयर मेडिकल एग्जामिनेशन। और यहाँ पे जो मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल से कराना है या कोई लोकल अथॉरिटी, और अगर 16 किलोमीटर रेडियस में नहीं अवेलेबल है तब कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप करा सकते हैं। नाउ 53 इज़ अ नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन। 53 जो है वो नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये सबका जो है वो नॉर्मल प्रोसीजर के तहत होता है। तो दिस वे वी अंडरस्टैंड कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज अंडर सेक्शन 51 एंड 52, 53, और हर अरेस्ट का रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 59 सबमिट करना है। तो दिस वे टुडे डिस्कशन वी आर गोइंग टू कंक्लूड। अब इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। टुडे वी अंडरस्टैंड लीगल मीनिंग ऑफ अरेस्ट, देन पर्पस ऑफ अरेस्ट,
हम लोगों ने समझा कि किस पर्पस से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने अरेस्ट के प्रोविजंस बनाए हैं. अगेन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट, कस्टडी एंड डिटेंशन. हम लोगों ने ये भी समझा. अगेन अरेस्ट in being described under two heads, arrest with warrant or without warrant. We also understand the provisions of the arrest with warrant and without warrant. Then we also understand the importance of issuing notice, and we also understand what are the procedure being followed during the arrest and after the arrest. And this way we will be concluded the arrest. And in next lecture we are going to discuss, that is very important part, that is right of arrested person, an important case decision decided by the Supreme Court in respect of that right. For the time, thank you very much.